This conference will now be recorded. अच्छा, हो गया काम।
नाम नहीं हो रहा कनेक्ट। Hello. Assalamualaikum everyone. वालेकुम अस्सलाम। One by one अपने बताते जाइए. Hello. Hello. Can you Whose hear turn me? is this? Yes, you are. I can hear you. All right. I'm your host Sana Sharif. Yes. Please tell me your names at least one by one. Okay. Is it my turn? Yeah, sure. You can start. Okay. I am Fazia Mujib. I am teaching at Habib Girls School, and it's first time I'm attending this meeting. Assalamualaikum. I am Tuba Javed. I am teaching in Wonder Seedling School, subject English. That's nice. Next. Who else there? Assalamualaikum. I'm Zara Hussain. I'm teaching in Wonder Seedling School, subject English and Maths. All right. Nice. Next. Assalamualaikum. My name is Sayyida Maryam Shah. I'm teaching in SOS Herman Manor Higher Secondary School, and I'm teaching the subjects of English, Maths, Islamic, and SST. Okay. Can you see the slide mentioning in your screen? Yes. 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 आपके पर कोई It's slide clear. show हो रही है? Yeah, it's about you and sir. Okay. Yes. Great. It's a front page All of the right. slide. Yes. हम बस 10 मिनट और इंतजार करेंगे हमारी कुछ ऑडियंस का. काफी लोग कनेक्ट हो चुके हैं, but some are left and some importants are left, so I am waiting for. We will start just in 5 to 10 minutes. All right. Okay. There are 16 participants are connected and more will be come soon. Okay, after the session, please give your feedback on our Facebook page for the suggestion or the objection, whatever you had in your mind, or whatever you feel in the session, whatever you learn in the session. All right. Okay. Absolutely. Yes. Okay. We will. Yes. Thank you so much. Yes. Sir, can we start now? Yes. Just 5 minutes. I'm Anamsha. I'm teaching subject Yes, Anamika. Hindi and Social Studies.
Okay, this is Rimsha Shakir. I am teaching a subject in English. English. Okay, that's nice. There are mostly teachers. I Yes. am Mohammed Shakir. I am teaching mathematics in the Educators Orangi Town campus. That's nice. Whilst there, Mr. Aisha Faisal, Anam Shah, Fawzia Mujib, Mohammed Shakir, Ramsha Siddiqui, Rifa. Rifa, you want to introduce yourself? Hello, Rimsha. Can you hear me? All right, Rimsha, to say something. Hello, Miss Sana. Yes. Tell us something about you. Are you a teacher? Yes, ma'am. I has been teaching experience since 6 years. Okay. In which school you are teaching right now? Right now, I had left because I'm working freelancing and I'm working with the Smart Games Academy. I'm part of different organizations too. So right now, I'm not a teaching. Okay. I think sir is online. I think yeah, I just waiting for the sir. Yeah, he is online. I can see him on his screen. Assalamualaikum. All right. Assalamualaikum. Can you hear us? Hello, sir. Are you there? I Please think he's अपने अपने mics अगर आप लोग off कर दें, please off your mics. Mute your okay. mics, everyone. Can you hear me, everyone? Please mute your mic. All right. I'm just giving you a little introduction about Smart Games Academy. So this is Sana Sharif, the founder of the Smart Games Academy and a certified trainer. I have been working here since 1 year. The mission of Smart Games Academy is to transform education and eliminate the screen time and provide a conceptual learning through games. Aims of this academy is to develop skills in our students like problem solving, creativity, collaboration, extrinsic motivation, critical thinking, and communication. So today we have a public speaking session with our most respected, honorable person who has ocean of knowledge and a vast experience. He did his master's in English literature and linguistics both. He is certified in ELT from a spelled 1 year PGD in public, admits lots of short courses and workshop in leadership, communication skills, etc. He has served for 5 years plus at NURST, Karachi. Now I warmly welcome to Mr. Tariq and requested to start the session. Sir, please join your audio. Sir Tariq, can you hear me? Am I audible? Yes, you can. Please start your session. Okay, thank you very much for inviting me to such a wonderful session and a very important topic. I am thankful to you all, and I am also very much thankful to the teachers who have taken time and they are with us right now. In the beginning, I would like to find out that should I speak only in English or we can switch the medium? I mean, we can go for both So English I and think Urdu. bilingual is more important because there is a multiple audience. So I think bilingual should be more good. Okay, fine. चलिए हम स्टार्ट करते हैं और जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आई वुड लाइक टू स्टार्ट के public speaking for the teachers, why it is very much important and why they need to learn about it, na? So first of all, I would like to share that who is a teacher. Can we connect somebody whose opinion we can take online Yeah, sure, sir. from the audience? Anybody would like to respond?
If anyone Who is wants the to reply, please unmute your mic and answer him. Hello. Hello, am I audible to you, sir? Yes, you are audible. Please say. I am a teacher. Yes, I am a teacher. I am teaching at Habib Girls School. I am teaching higher secondary school. I am teaching English. The voice is Hello? not clear, So ma'am. my question My is, voice who is is the not clear. Yes, what's your question? teacher in their opinion? I am a teacher. Who is a teacher? A teacher. टीचर क्या होता है? टीचर It is कौन to. होता है? Teacher is a person who forms or who can transforms individuals into civilized citizens. Okay, anyone else? Please mute your mic again. Anyone else want to answer? Please unmute your mic and say. A teacher is a person who grooms a child and he works for the personality development of his students. This is one aspect of a teacher. वो बच्चों की ग्रूमिंग करता है, उनकी शख्सियत को उभारता है, उनके लिए रोल मॉडल है, उनके लिए एक अच्छा इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है, वो बच्चे को उसके प्रॉब्लम हल करने के लिए उसकी हेल्प करता है जो बच्चा खुद हल नहीं कर सकता. Teachers are those people who are not king themselves, but they are king makers. A teacher helps in molding the person's personality और वो उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग भी करते हैं. डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, एस्ट्रोनॉट्स, पॉलिटिशियंस, दे आर मेड बाय द टीचर. तो टीचर का एक डिफरेंट रोल है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. अगर उसकी अपनी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप नहीं है, अगर वो अंडर स्ट्रेस है, अगर उसकी पर्सनैलिटी एक्सट्रोवर्ट नहीं है, तो फिर आप बताएं कि कैसे वो रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा, स्कूल की जो मिशन स्टेटमेंट है उसको मीट करेगा और बच्चों के अंदर 21st सेंचुरी स्किल्स को क्रिएट करेगा. तो पब्लिक स्पीकिंग तक जाने से पहले आई वुड लाइक टू शेयर कि व्हाट आर द 21st सेंचुरी स्किल्स फॉर द टीचर्स. 21वीं सदी के अंदर टीचर का रोल इंटायरली चेंज हो चुका है. अब वो 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर काम कर रहा है. जिन टीचर्स ने अपने बचपन में खुद कभी कंप्यूटर ऑपरेट नहीं किया था, अभी वो ऑनलाइन सेशंस दे रहे हैं. दीज आर द चेंज टाइम्स. 21st सेंचुरी की जो स्किल्स हैं वो क्या हैं? नंबर 1 कोलैबोरेशन, बच्चों के साथ मिलकर काम करना. डिजिटल लिटरेसी, बच्चों को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जरिए पढ़ाना, उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सिखाना और उनको मॉडर्न चैलेंजेस से
नबुर्द आजमा होने के लिए तैयार करना। तो ये सारी चीजें वो कैसे करेगा? जब उसके अंदर वो नेसेसरी कॉम्पिटेंसीज होंगी। कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना नहीं है, सिर्फ बात करना नहीं है, बल्कि उस बात को, अपने मैसेज को, अपने सब्जेक्ट को स्टूडेंट्स के जहन में उतारना है, और जो रिजल्ट वो प्रोड्यूस करते हैं उससे टीचर को पता चलता है कि हाउ गुड दैट पर्सन इज। तो आपने अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को एक लीडर बनाना है। उनके अंदर इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग क्रिएट करनी है, उनके अंदर कोलैबोरेशन क्रिएट करनी है, उनकी थिंकिंग स्किल के ऊपर काम करना है, उनको आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर बनाना है, उनके अंदर क्रिएटिविटी डेवलप करनी है। और ये तभी मुमकिन है अगर आज के टीचर के अंदर ये चीजें, ये सलाहियतें, ये कॉम्पिटेंसीज मौजूद हैं। यहां तक अगर कोई सवाल करना चाहे तो आई एम स्टॉपिंग फॉर 30 seconds. Any question? No, sir. You can go ahead. Okay. अभी हमें देखना है कि प्रेजेंटेशन स्किल्स या कम्युनिकेशन स्किल्स या पब्लिक स्पीकिंग के हवाले से जो सबसे बेसिक चीज है वो है टीचर का अपना कॉन्फिडेंस। अगर टीचर के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो कॉन्फिडेंस पैदा नहीं कर सकता, वो बच्चों के अंदर कॉम्पिटेंसीज क्रिएट नहीं कर सकता, वो 21st सेंचुरी की कोर कॉम्पिटेंसीज को मीट नहीं कर सकता, वो उनको एक्सट्रोवर्ट नहीं बना सकता। तो अब टीचर के अंदर किन सोर्सेज से कॉन्फिडेंस आता है? नंबर 1, नॉलेज। उसको नॉलेज हासिल करना होगा, सब्जेक्ट का नॉलेज, स्टूडेंट साइकोलॉजी का नॉलेज, अपने इल्म को ट्रांसफर करने का नॉलेज, उनके मूड्स एंड बिहेवियर्स का नॉलेज, इमोशनल इंटेलिजेंस का नॉलेज। तो इस तमाम नॉलेज का हासिल करना काफी नहीं है, उस नॉलेज को अपनी एबिलिटी के अंदर कन्वर्ट करना होगा और उस एबिलिटी को अपनी स्किल बनाना होगा। और उस स्किल को जब आप यूज करते हैं और आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। टीचर्स को कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करने लिए अपने इमेज के ऊपर काम करना होगा, उनको रिस्पेक्ट अर्न करनी होगी, अपने फील्ड में मोतबर बनना होगा, अपनी ड्रेसिंग बेहतर करनी होगी, अपने एटिकेट्स, अपने मैनर्स, स्ट्रेस के अंदर बिहेव करना। बहुत सारे बच्चे जब आप को अप्रोच करते हैं तो उस वक्त एक एक को डील करना। टीचर के ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां हैं, वो घरों में भी चीजें संभाल रहे हैं, वो अपने बच्चों को भी देख रहे हैं, वो स्कूल के अंदर भी चीजें हैंडल कर रहे हैं, वो स्कूल मैनेजमेंट को भी देख रहे हैं, पीटीएम्स के अंदर भी वो हैंडल कर रही है। और इस तरीके से वो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर रिजल्ट प्रोड्यूस कर रही हैं। तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए टीचर को नॉलेज, स्किलेबिलिटी और इमेज के ऊपर काम करना होगा, उनको कनेक्शन बनाने होंगे, उनको उन लोगों के साथ कनेक्शन बनाने होंगे जो उनको अप्रिशिएट करें, ना कि वो जो उनकी पॉजिटिव चीजों को भी निगेट करें। Bring those people in your life who are positive, who are not complainers, who have growth mindset, who are dealers in hope, who believe in struggle, who believe in human goodness. एक टीचर को अपने रिलेशंस के ऊपर, अपने पब्लिक रिलेशंस के ऊपर काफी काम करना है और से ये चीजें सीखनी होंगी, उसे इनको मास्टर करना होगा। और आपको पता है आज के दौर में जिसकी कम्युनिकेशन अच्छी है, जो लोगों को बात समझा सकता है, उसे सबसे ज्यादा आगे बढ़ने के मौके मिलते हैं। और इस लर्निंग के साथ टीचर
एक लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करता है. He has to be friendly, but it does not mean that he has to lower his or her standards. He has to become a role model in the life of a student. लेकिन रोल मॉडल बनने के लिए आज के टीचर को अपने लिए एक रोल मॉडल ढूंढना होगा, अपने इर्द गिर्द में ढूंढना होगा और उसको लर्न करना होगा, उसको इल्म नाफे हासिल करना होगा, उसको एक ऐसा इल्म हासिल करना होगा जो उसको बेनिफिट्स दे. उसे साइकोलॉजी रीड करनी होगी, उसे इंग्लिश लैंग्वेज पे कमांड हासिल करनी होगी, उसे रिटन, स्पोकन और मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन को बेहतर बनाना होगा. He has to learn latest teaching methods. He has to learn how to integrate technology, that is ICT, in her classroom. He has to introduce activities. He has to create different events for student engagement every day. When he will be engaged, the focus of teacher will not be on his personality or her personality. Her focus will be on learning, on producing result, and then there will be confidence. मजीद कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए टीचर को अपने एटीट्यूड पे काम करना पड़ेगा. वो किस तरीके से बिहेव करते हैं, अंडर स्ट्रेस उनका रवैया कैसा होता है, उनका कैरेक्टर कैसा है, वो कितना ज्यादा दबाव में काम करते हैं, वो लोगों के लिए कितना ज्यादा काम करते हैं, जब वो गुस्से में होते हैं उनके मैनर्स क्या होते हैं. दे हैव टू लर्न हाउ टू बी हम्बल, दे हैव टू लर्न टू से थैंक यू, दे हैव टू लर्न टू एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड. लोगों का शुक्रिया अदा करना सीखना होगा, पेरेंट्स का शुक्रिया अदा करना होगा, अपने स्टूडेंट्स का शुक्रिया अदा करना होगा, अपने स्कूल मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा करना होगा और इस शुक्रिया के नतीजे में they will earn respect. They have to be a brand in your field. जब वो ब्रांड बनेंगे, अपनी यूएसपीज क्रिएट करेंगे, अपने यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशंस क्रिएट करेंगे, तो आप देखेंगे कि लोग उनकी तरफ आना शुरू हो जाएंगे, लोग उनको रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे, and they will be counted among the top professionals in their fields. और इसके लिए they have to गिव एडवांस पेमेंट. उन्हें मेहनत करना होगी, टाइम मैनेजमेंट सीखना होगी, अपनी जिंदगी में अर्जेंट इंपॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट नॉट इंपॉर्टेंट, उस चीज को एनालाइज करना होगा. दे हैव टू लर्न हाउ टू ईट द फ्रॉग. ईट द फ्रॉग इज द नेम ऑफ ए बुक बाय ब्रायन ट्रेसी. इट टेल्स यू हाउ टू मैनेज योर टाइम. और जब आप टाइम मैनेज करेंगे तो आप देखेंगे कि आप इंपॉर्टेंट चीजों पे काम कर रहे हैं और जब आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा. आपको यह भी सीखना है कि आपके और आपके स्टूडेंट्स के दरमियान कम्युनिकेशन गैप क्रिएट ना हो. आपको उनसे बात करना होगी, उनके मसाइल समझना होंगे, उनके लेवल्स के ऊपर आना होगा और अपनी पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स को निगेट करना होगा. और ये आसान काम नहीं है, इसके लिए बड़ी मेहनत करनी होगी. यू हैव टू लर्न हाउ टू रीड मूड्स ऑफ योर स्टूडेंट्स, हाउ टू रीड देयर नेचर. अगर स्टूडेंट मिसबिहेव कर रहा है तो आपको पेशेंस क्रिएट करनी होगी, अपने बिहेवियर को मजीद बेहतर करना होगा. एंड यू हैव टू लर्न हाउ टू डील विद द इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑफ द स्टूडेंट. सारे बच्चे एक बैकग्राउंड से नहीं आते, एक कल्चर से नहीं आते, एक लैंग्वेज नहीं होती, एक फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं होता. वो मुख्तलिफ चीज़ों से आ रहे होते हैं आपके पास और आपको ये समझना पड़ेगा. और अगर आप अपने मसाइल में घिरे हुए हैं, अगर आप अपनी सैलरी के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड हैं लेकिन स्किल के ऊपर फोकस नहीं है तो आप हमेशा स्टक रहेंगे. फिर आपका फोकस फिक्स्ड माइंडसेट के ऊपर है. आपको अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट करनी होगी, पर्सनल कैपेसिटी बिल्डिंग करनी होगी, आपको वर्कशॉप्स लेनी होंगी, नई चीज़ें सीखनी होंगी और उनको अमल में लाना होगा. आपको वेबिनार अटेंड करने होंगे,
क्योंकि अटेंडिंग इज नॉट एनफ, you have to put your learning into your practice. Even this is not enough, you have to find out where your practice produces results and where it is not producing results, and where it is not producing results, you have to take out your learning points, you have to reflect on those points, and then you have to add your learning points into next टीचिंग असाइनमेंट। तो ये कुछ सोर्सेज हैं जो मैंने अभी आपसे बयान किए, जिस तरीके से आप कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं। अपनी नींद पूरी करें। अगर आपकी नींद 7 to 8 आवर्स की नहीं है तो आपको स्ट्रेस आएगा, आप कामों में परेशान हो जाएंगे, आप चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाएंगे। इसके सिलसिले में आई वुड रिकमेंड रॉबिन शर्मा has written a very wonderful book. The name of that book is 5 AM Club. इसको पढ़ें, यह बताएगा आपको जब आप रात को सोते हैं तो आपके अंदर कितने हार्मोन्स, कितने केमिकल्स इकट्ठे हो जाते हैं। फियर का केमिकल इकट्ठा होता है, और जब आप मॉर्निंग वॉक करते हैं तो वो एक अमेजिंग इफेक्ट क्रिएट करती है। आपके मूड डिसऑर्डर्स खत्म होना शुरू हो जाते हैं, आप हैप्पी मूड में आ जाते हैं। तो पढ़ने से और इम्प्लीमेंट करने से आपको चीजें समझ में आएंगी। अभी हम बात करते हैं कम्युनिकेशन या पब्लिक स्पीकिंग के हवाले से। याद रखें, जब भी आप क्लास में जाते हैं या आप मैनेजमेंट के पास जाते हैं या कुलीग से मिलते हैं या पेरेंट टीचर मीटिंग में होते हैं, तो जब आप उनसे बात कर रहे होते हैं तो आप 3 लेवल्स के ऊपर बात कर रहे होते हैं। पहले लेवल आपका वर्बल कहलाता है, आपकी वर्ड चॉइस है, आप कैसे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। आफ्टर टॉकिंग 30 मिनट्स 1 आवर इन ए होल डे PTM यू गेट टायर्ड, आप नर्वस होना शुरू हो जाते हैं, आप स्ट्रेस में आना शुरू हो जाते हैं। तो इस कैफियत के बाद जो पेरेंट्स आपके पास आएंगे और वो कोई चीज पॉइंट आउट करेंगे तो आपका रवैया कैसा होगा। याद रखें, वर्बल कम्युनिकेशन 7% काउंट होती है, हम इसके ऊपर 100% टाइम लगाते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट पैरावर्बल कम्युनिकेशन। पैरावर्बल कम्युनिकेशन आपकी टोन है, आप किस लहजे में बात करते हैं। आपका लहजा आपके वर्ड्स को मीनिंग देता है, इट इज द ड्रेस ऑफ योर वर्ड्स। और ये जो पैरावर्बल कम्युनिकेशन है, बेसिकली मुझे एको आ रही है तो इससे मुझे बीच में बाद वक्त रुकना पड़ रहा है। तो पैरावर्बल कम्युनिकेशन काउंट्स फॉर 38%। ठीक है, तो आपको सीखना होगा मीठा लहजा, नरम लहजा किस तरीके से बयान करना है, कैसे आपने अपने अल्फाज और अपने लहजे को सिचुएशन के मुताबिक आगे लेके चलना है। और जो तीसरा एलिमेंट है जो 55% है, वो है आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से क्या मुराद है? इससे मुराद ये है आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी जेस्चर्स, बात करते हुए आपकी पोस्चर कैसे है, आप कैसे खड़े हुए हैं। अगर आपने दोनों हाथ जेबों में डाले हुए हैं और आप मैनेजमेंट से बात कर रहे हैं, एंग्री पेरेंट से बात कर रहे हैं, तो उसका इफेक्ट डिफरेंट होगा। आपके हाथ फोल्डेड हैं, उसका मीनिंग डिफरेंट है। आप स्माइल करके बात करते हैं, उसका मीनिंग डिफरेंट है। बात करते हुए आपके चेहरे पे गुस्से के आसार आते हैं, अल्फाज मीठे हैं, लहजा तल्ख है, तो व्हाट विल बी द मीनिंग। और आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो बड़े अच्छे तरीके से बात की, लेकिन दूसरे बंदे को गुस्सा आता चला जा रहा है, क्योंकि इमीडिएट आपको फीडबैक मिल रही होती है फेस टू फेस कम्युनिकेशन में। तो आपकी जो कम्युनिकेशन है उसमें 100% में से 7% गोज फॉर वर्बल कम्युनिकेशन।
and 93% goes for non-verbal communication and paraverbal communication. तो टीचर से मेरी दरखास्त है, जरा सोचें क्लास 1 से देयर लास्ट डिग्री तक कभी किसी ने उनको बताया हाउ टू इम्प्रूव योर पैरावर्बल कम्युनिकेशन, हाउ टू इम्प्रूव देयर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में जो ड्रेस पहना हुआ है, जो उसका कलर है, वो भी काउंट करता है। आपकी जो टाइमिंग है वो भी काउंट करती है। आप बहुत अच्छे टीचर हैं, आपकी वर्बल कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, आपकी लहजा बहुत अच्छा है, लेकिन आप लेट आ रही हैं, आपने बाल अच्छे नहीं बनाए हुए, आपके कपड़े खराब हैं, स्पॉट्स हैं, आयरन नहीं है, तो आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो किस किस्म का इंप्रेशन क्रिएट करेगी। आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं प्रमोशन के लिए, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, लहजा कितना काउंट करेगा उसके ऊपर। तो अगर आपने कम्युनिकेशन में अपनी नॉन वर्बल और पैरावर्बल कम्युनिकेशन को इम्प्रूव नहीं किया तो इट मीन्स यू आर 93% हैंडीकैप्ड, और 7% के साथ इफ यू कैन बी इफेक्टिव देन यू आर सेंट, यू आर अ मिरेकल मेकर। आप चलते फिरते लेजेंड हैं, और इस किस्म के लेजेंड 21st सेंचुरी में आपको प्रोग्रेस करते हुए नहीं मिलेंगे। एक और चीज जो मैं आपको वादे करता चलूं पब्लिक स्पीकिंग के हवाले से, कम्युनिकेशन के हवाले से, वो है लिसनिंग। हाउ मेनी ऑफ यू हैव अटेंडेड कोर्सेज ऑन लिसनिंग? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग? जब हम सुन रहे होते हैं और तवज्जो नहीं होती, वो हेयरिंग कहलाती है। और जब हमारा फोकस होता है सामने वाले की बात पर, उसको समझने के ऊपर और उसके लेवल के ऊपर आके उसको जवाब देने के लिए, फिर कम्युनिकेशन आपकी इफेक्टिव होती है। लेकिन होता क्या है, जब मैं किसी को सुन रहा हूँ, मैं उसको अंडरस्टैंड कम कर रहा हूँ, मेरे ध्यान में क्या चल रहा है, वेयर माई माइंड इज वर्किंग, ये आगे क्या जवाब देगा, इसके चेहरे के तसुरात क्या हैं, मैं इस शख्स को कैसे झुठला सकता हूं, या मैं इस सिचुएशन से कैसे निकलूं, हाउ टू गेट रिड ऑफ दिस सिचुएशन। क्लास में हूं, ऑब्जर्वेशन टीम आ गई है, कोऑर्डिनेटर आ गई हैं, वीपी या प्रिंसिपल आ गई हैं, क्लास में पीछे बैठ गई हैं। नाउ व्हाट इज माय फोकस? माय फोकस विल बी कैसे जान छुड़ाऊं, और बच्चों के सामने आपकी परफॉर्मेंस लूज हो जाएगी। हर टीचर की नहीं होती, लेकिन जिनकी होती है, आई एम एड्रेसिंग टू दोज टीचर्स। तो रिजल्ट क्या होगा? इफ योर वीपी सेज explain what you are teaching, now my focus is VP, my focus is not my content, तो नतीजा क्या होगा? वही होगा जो हम इमेजिन कर पा रहे हैं। तो अपनी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर बहुत ज्यादा काम करें। कैसे आपको पता चलेगा कि आप कैसे बात करते हैं? यू कैन स्पीक इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, शीशे में देखें बात करते हुए, आपकी आईज कहाँ पे फोकस हैं, आपके हाथ कहाँ पे हैं, आपकी बॉडी कैसे मूव कर रही है, आपके वर्ड्स और आपकी बॉडी दोनों मैच कर रहे हैं या मिसमैच हैं। एक और जो सबसे जबरदस्त मेथड आप सबके पास अवेलेबल है, वो है मोबाइल फोन। वही मोबाइल फोन जिससे आज हम सब कनेक्टेड हैं, उसमें रिकॉर्डिंग ऑप्शन है, उसमें जाएं और 1 घंटा अपने लेक्चर को रिकॉर्ड करें और खुद ही बैठ के एनालिसिस करें वेदर यू आर कॉन्फिडेंट और यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट्स यू आर मेकिंग, व्हाट आर योर वीक स्पॉट्स, आइडेंटिफाई देम, वर्क ऑन देम, मेक देम योर।
आपकी बॉडी लैंग्वेज बढ़नी शुरू हो जाएगी। याद रखें, माय मोस्ट रिस्पेक्टेड टीचर्स, you are doing a very wonderful job. You are doing a job which everybody cannot do. It is a very professional job. You have entered a very sacred profession. Every profession has its protocol. Learn its protocols. You have to work in different situations. You are in the class, you are in a different situation. You are with your colleagues, you are in a different situation. You are sitting in the staff room, and in staff room, politics is going on. There are groups. You become a part of the group, and then you start getting influenced by that group. There, you are talking about different students, about VP, about principal, about other management, about parents. आप खुद नहीं मिले होते, आप सुन रहे होते हैं, आप उन बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं जिनके पेरेंट्स के बारे में बात हो रही होती है, and you are getting unconsciously and subconsciously influenced by that grapevine, that staff room talk. And when you are meeting with those students and with that parent, automatically that impression is running in your mind. And when that impression is controlling your brain, your mind, your behavior is changing, but you are not aware. आपकी टोन चेंज हो जाएगी, बात करते हुए चेहरा स्पॉट हो जाएगा, स्माइल गायब हो जाएगी, और आप एक पर्सनैलिटी क्लैश की तरफ चले जाएंगे. That is the death of your communication. You frequently interact with your students. उनसे पूछें, अगर वो अच्छे नहीं हैं तो उनकी सब्जेक्ट में क्या वीकनेसेस हैं. Go an extra mile. Meet your section heads. Take their advice. Meet your VPs. Learn from their experience. Take time from your principals. Take time from your school administration. You have to give time, extra time. But once you give this extra time, what will be the result? More interaction, more closeness, more understanding, and then there will be harmony. You all will be on one page. The problem will be discussed, and the solutions will be coming from different sources. When you meet with non-teaching staff, you meet with PNs, clerks, and other people, do not adopt their language. Rather, advise them about their behavior. When parents come on the gate, how they should meet, how they should behave, how they should control their anger. And as a teacher, you should also learn how to control your anger. घर का गुस्सा क्लास में ना लेके आए, क्लास का गुस्सा घर में ना लेके जाएं. अगर ऐसा करेंगे, गुस्सा पाइल अप होगा, गुस्सा पाइल अप होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, आप प्रेशर कुकर बन जाएंगे, प्रेशर कुकर फटेगा तो हर चीज खत्म हो जाएगी. तभी स्टीफन आर कॉवी ने अपनी शोहर अफा किताब 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में ये कहा था, बिगिन विद द एंड इन माइंड. आप जो बात करने लगे हैं, सोचें इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका नतीजा क्या होगा, इसके क्या असरात होंगे. यहां पे ये मैं बताता चलूं कि रिएक्टिव और रिस्पॉन्सिव माइंडसेट में क्या फर्क है. रिएक्टिव माइंडसेट क्या है? जब एक स्टूडेंट आपके पास आया और उससे कोई प्रॉब्लम पूछा और आप उसको समझा नहीं पाए और उसकी बॉडी लैंग्वेज से आपको मालूम हुआ कि ये मेरा मजाक उड़ा रहा है, उस सिचुएशन में you become angry. It is natural, it is normal, and you misbehave. It is normal. No, it is not normal. Why?
यू आर नॉट क्रिएचर्स, यू आर क्राउन ऑफ क्रिएचर्स। आप अशरफुल मखलूकात हैं। आपका लेवल और उस बच्चे के लेवल में बहुत ज़्यादा फर्क है। आपकी एज और उस बच्चे की एज में बहुत ज़्यादा फर्क है। आपके एक्सपीरियंस, आपकी एजुकेशन और उस बच्चे की एजुकेशन और एक्सपीरियंस में बहुत ज़्यादा फर्क है। गुस्सा रोक लें, फौरन रिएक्ट ना करें, 10 सेकंड तक गिने अपने जहन में, कूल डाउन करें, मेक ए चॉइस। अगर मैं डांटूंगी, गुस्से में आऊंगी, तो इसका नतीजा क्या होगा? और अगर मैं एक्स्ट्रा टाइम दूंगी, ज्यादा एक्सप्लेन करूंगी, दूसरी एग्जांपल दूंगी, प्यार से समझाऊंगी, तो इस बच्चे के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा? तो ये सारा आपकी कम्युनिकेशन का कमाल है। आपकी वर्बल कम्युनिकेशन, आपकी पैरावर्बल कम्युनिकेशन और आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसी तरीके से जो आपकी रिटन कम्युनिकेशन है, जो आप बच्चों की डायरी पे लिख के भेजते हैं, वो बच्चा नहीं पढ़ता, उसके पेरेंट्स पढ़ते हैं, उसके बाकी बहन भाई पढ़ते हैं। तो आपकी स्पेलिंग की गलतियां, फिक्रे की गलतियां कहाँ कहाँ तक जा रही हैं? ये कहना कि 40 बच्चे हैं क्लास में, 50 बच्चे हैं क्लास में, मेरे पास टाइम नहीं है, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी जो फॉल्टी कम्युनिकेशन है, जो आपकी ग्रामेटिकल एरर्स हैं, जो सेंटेंस की एरर्स हैं, वो आपका इमेज लेके जा रही हैं। और जब बार बार ये गलतियां होंगी, जब स्टूडेंट की रिपोर्ट के अंदर गलतियां करेंगे, तो उसका एंड रिजल्ट क्या होगा? आपके इंप्रेशन क्या क्रिएट होगा? और फिर आप कहेंगे हमें प्रमोशन नहीं मिलती, हमारी मैनेजमेंट एम्पैथिक नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो चीजें कहाँ से शुरू होती हैं? चीजें मुझसे शुरू होती हैं। आई हैव टू लर्न टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे अपनी लर्निंग खुद करनी होगी और मुझे अपने मैसेज को क्लियर तरीके से और टेक्टफुली दूसरे तक समझाना होगा। और इस सिलसिले में अगर मुझे अपने कोलीग्स की हेल्प लेनी चाहिए, उनसे इंटरेक्ट करना पड़ेगा, तो ज़रूर करना चाहिए। रिमेंबर, प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटीज encourage teachers to plan their lessons together. Why? It gives them an opportunity to know about each other, to learn from each other. And in this way, you build trust. एक बहुत जबरदस्त किताब थी स्टीफन अरकॉवी की, और उसका नाम है स्पीड ऑफ ट्रस्ट। आपकी बड़ी कॉम्पिटेंस हैं, लेकिन आप जल्दबाज मशहूर हैं, गुस्से वाले मशहूर हैं, रिएक्शनरी मशहूर हैं। इस बात के लिए मशहूर हैं कि आप जल्दबाजी में रहते हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। यू कैन नॉट बिल्ड ट्रस्ट। जिस माहौल में ट्रस्ट ना हो, रिस्पेक्ट ना हो, लोग आपको एक्सेप्ट ना करें, वहां स्टीफन हॉकिंग का नॉलेज भी फेल हो जाएगा। क्यों? अगला शख्स आपको सुनने के लिए तैयार नहीं है, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज से अनाय हो रहा है, वो आपकी टोन से अनाय हो रहा है, तो आपका कंटेंट किसी काम का नहीं है। दैट्स व्हाई इन पब्लिक स्पीकिंग, इन कम्युनिकेशन, द फर्स्ट थिंग you have to do is to build trust. It is called rapport building. RAPPORT. Rapport. Rapport is connection. It is the bridge. It is the bridge of trust. When there is a trust, people will listen you. You imagine कि आप एक ऐसे सिचुएशन में हैं जहां पे आप प्रमोशन के लिए जाते हैं,
but you're not trustworthy, then what will happen? You will not be promoted. So you have to work on it, and this will need a lot of patience, lot of knowledge about what kind of tone you should use, what kind of positive words you should use. You have to practice. You have to learn what are the emotional states, how to deal different emotional states of your students, of yourself, of your colleagues. And when you learn, your communication will improve. Remember, English is one medium of communication. You learn it. If this is a need, you can talk in Urdu. Any language can be your medium of expression. But what is most important is your emotional balance, your emotional energies, your emotional states, your mental states, your talking style. These things count a lot. Student will only listen to a teacher when they are convinced that teacher is sincere, teacher is loyal, teacher has a lot of knowledge, teacher is a counselor, teacher is solution oriented, and teacher is ready to give him or her extra educational support. Now, coming to the barriers, things which can go wrong while talking, interacting between the teachers and the students. Number one is the listening barrier. I have already explained it a lot. Take time to listen to your student, to your management. And when you are listening, do not listen with a questioning mind. दिमाग में जजमेंटल बनकर, प्रेजुडिस लेकर, प्री कंसीव्ड नोशन लेकर, ये सोचकर कि इस शख्स ने मेरे लिए कोई अच्छा काम नहीं करना, आप कभी भी समझ नहीं सकते, आप सिर्फ सुन सकते हैं. दूसरी चीज, नेगेटिव इमोशंस, ये ऑटोमेटिक हैं. अकॉर्डिंग टू NLP, NLP is the modern form of hypnosis. We have almost 60,000 negative thoughts. Rather, total thoughts of an average person, 60,000. Out of these, 80 to 95% of these thoughts are negative. Until you have a very positive background, you have strong belief, your faith is very strong, you are a religious person. Otherwise, there are predominantly negative thoughts. When you go for the interview for your job, how many of you have experienced positive thoughts before the interview? When you go first time to meet your VP, to meet your principal, what are your thoughts? You are in the class and you get a message, आज 3 बजे मीटिंग है, आज 5 बजे मीटिंग है. What is your first thought? ये आप ही एनालाइज कर सकते हैं. रिसर्च ये कहती है, पहली थॉट हमेशा तो नहीं, लेकिन 95% नेगेटिव होती है. तो इनके ऊपर काबू पाना जरूरी है. इसके ऊपर कैसे काबू पा सकते हैं? इन नेगेटिव थॉट्स को लिख लें, रिकॉर्ड कर लें, और जब भी मौका मिले उनको पढ़ लें, सुन लें, और उनको नेगेटिव सेंटेंसेस से पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट करना शुरू कर दें. एक और पॉइंट लिख लें, ऑटो सजेशन. ऑटो सजेशन यूट्यूब के ऊपर जाके देखें ये क्या है.
यूट्यूब के ऊपर जाके टाइप करें NAC, न्यूरो एसोसिएटिव कंडीशनिंग। देखें ये क्या है। यूट्यूब के ऊपर जाके टाइप करें RAC, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। देखें ये क्या है। ये आपका सबकॉन्शियस है, ये आपका अनकॉन्शियस है, ये आपको कंट्रोल कर रहा होता है और आपकी पूरी कम्युनिकेशन का सत्यानाश कर रहा होता है। ये आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस क्रिएट कर रहा होता है, गुस्सा पैदा कर रहा होता है, एंगर क्रिएट कर रहा होता है, स्ट्रेस क्रिएट कर रहा होता है, नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा होता है और ये आपको हॉस्टाइल बना लेता है, अपना कैदी बना लेता है, जो बिकम विक्टिम टू दीज नेगेटिव इमोशंस। तो इसको जब तक अवेयरनेस क्रिएट नहीं करेंगे, आपको पता नहीं होगा अपनी पर्सनैलिटी का, अपने प्रोज एंड कॉन्स का, आप कैसे काम करेंगे। याद रखें, कम्युनिकेशन सब्जेक्ट नहीं है, कम्युनिकेशन आप खुद हैं, आपकी थॉट्स हैं, आपका बिहेवियर है, आपके एक्शंस हैं, आपकी सोचें हैं, आपकी शख्सियत है। और इन सब पर काम किए बगैर आप इंग्लिश के 1000 फिक्रे याद कर लें, आप जितनी मर्जी मिठास क्रिएट कर लें, इफेक्ट असर पैदा नहीं कर सकते। आप इम्प्रेस तो कर सकते हैं हैवी इंग्लिश के साथ, हैवी वर्ड्स के साथ, लेकिन उनके अंदर असर पैदा नहीं कर सकते, तासर पैदा नहीं कर सकते, तासीर पैदा नहीं होगी। तो आपको अपनी कम्युनिकेशन के लिए अपने आप को पॉजिटिव बनाना होगा, अपने बिहेवियर के ऊपर काम करना होगा और आपको ये देखना होगा कि कम्युनिकेशन इज नॉट एक्सप्रेशन, इट इज रिसेप्शन। दूसरे की बॉडी लैंग्वेज क्या है, उसके मूड्स क्या हैं, जब वो आपकी बात सुन रहे हैं तो इसके एक्सप्रेशंस कैसे हैं, उसको आपने नोट करना है और उसके मुताबिक अपने अंदर एक चेंज लेके आनी है। अपनी अगली बात को पिछले ऑडियंस के बिहेवियर के साथ लिंक करके आगे चलना है। क्लैरिटी ऑफ थॉट is very much important. If you have wonderful knowledge but you are not proficient in your expressions, you have a problem with your speaking, then work on that. Learn what are different methods of communication and use them in your language. Work on them, and it all requires practice. You have to work on your tone of voice. You have to develop a genuine commitment of affection for your students. You have to care about the progress of your students. You have to learn the name of your students, and when you use them while talking to them, you will feel they feel happy. When your VP calls you, "Miss, come here," what is impact of this message? When she says, "Miss Rahila, please listen to me," then what will be the impact of this message? तो यही इम्पैक्ट आपने क्रिएट करना है। अपने स्टूडेंट्स के अंदर होप्स क्रिएट करनी है, फियर्स खत्म करने हैं, फ्रेंडली बनना है, नॉलेज देना है, अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करना है, अपने स्टूडेंट की सक्सेस को क्लास में सेलिब्रेट करना है। अपनी एक ऐसी टोन रखनी है जो ऑनेस्ट हो, जो टेक्टफुल हो, आपके वर्ड्स ऐसे हों जो सिचुएशन से मुताबिकत रखते हों, पोलाइट हों, पॉजिटिव हों, नॉन इन्फ्लेमेटरी हों, गुस्सा पैदा करने वाले ना हों। जब आप सुन रहे हों तो मेक आई कांटेक्ट और आपका फोकस आपके लिसनर के ऊपर और आपके स्पीकर के ऊपर होना चाहिए। ये नहीं है
बच्चा सवाल पूछ रहा है और आप बैग की जेब बंद कर रहे हो, घड़ी के ऊपर टाइम देख रहे हो या क्लास से बाहर देख रहे हो, इट विल ब्रेक द कम्युनिकेशन। जब दूसरा बात कर रहा है, डू नॉट इंटरप्ट। क्वेश्चनिंग माइंड के साथ उसको न सुने, एक्सेप्टेंस के साथ सुने। टीचर्स who model respect with the students, they earn respect, and overall environment is that of respect. While teaching your subject, repeat your message, repeat your point in different ways so that students with different learning abilities and learning styles understand you. You have to check for understanding of your students. Non-verbal communication के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करें, अपने फेशियल एक्सप्रेशन, अपनी जेस्चर्स के ऊपर काम करें। याद रखें, इफेक्टिव कम्युनिकेशन in the classroom requires careful use of these non-verbal cues. A teacher who rolls her eyes at a student's question sends a louder message than her careful and expert verbal response. A disapproving stare can work wonders on a student who is off task. A bright smile for a student who is having a bad day means more than he will ever reveal. Gestures and animated facial expressions give weight and enthusiasm to what a teacher has to say. Students who see a teacher actively engaged in what she is teaching will be much more engaged themselves. Avoid words. कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने के लिए कुछ वर्ड्स बता रहा हूं, उनको अवॉइड करें। मसलन, I am disappointed with you. What did you say? If I do that for you, I will have to do it for everyone. It's against the rules. Do not go against the rules. Rules are about behavior. Often there are many behaviors from which people can choose in order to solve a problem. Some may be within the rules. इसकी जगह पे क्या बोले? Let me see if there is a way to meet your need within the rules. ये मत कहें your brother or sister was better than you. I have taught her in previous class. या आप ये कहें who do you think you are? बच्चा आपके पास प्रॉब्लम लेके आता है, I am busy now. Don't dismiss a student abruptly. If they need you in some way, show that you care by saying, I am very busy now, but you are very important to me. Unless this is an emergency, let's find a better time to talk. I really want to hear what's on your mind. So I think we are running with the time and there is more to say, but I would like to exercise time management and would stop here. So I am open for question and answers, please. Thank you for patient listening. I have one question. While saying that what the points you have shared about the teachers should have that role model thinking, the teacher should not fear and should have that levels that you have mentioned. But how can we train a student to be confident while having a stage presentation, or maybe he or she is in a public speaking area? How we can make them confident? Some students are very shy; they will not get familiar with this speaking methodology in the classroom as well. So how to make them cope up with that? अच्छा, एक तो आवाज थोड़ी सी एको और क्लियर नहीं है. What I understand is that how to He's asking about the
stage performance. When being a teacher, when we are planning and preparing students for the stage performance, they feel very fear. So these type of fear, how can we cope up with this fear of students? Find out the reason for the fear. हो सकता है बच्चा फॉर द फर्स्ट टाइम स्टेज के ऊपर आ रहा है, उसे कॉन्फिडेंस दें, उसे प्रैक्टिस दें, उसको एक्स्ट्रा टाइम दें, उसको रोल मॉडल दें, उसको शॉर्ट टॉक दें, डायरेक्ट प्रेजेंटेशन पे ना लेके आए, क्लास में उसके साथ बैठे हैं। जब कोई दूसरा बच्चा प्रेजेंटेशन दे रहा हो तो आप उसको गाइड करें, उसे कहें पहली प्रेजेंटेशन घर से बना के लाए, घर में प्रैक्टिस रिहर्सल कर ले, क्योंकि आपका काम एक काउंसलर का है, एक फैसिलिटेटर का है। उसके फियर को भांपे बगैर आप उसको कॉन्फिडेंट नहीं बना सकते। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए जैसे मैंने बताया NLP के अंदर बहुत सारी टेक्निक्स हैं। माइंडफुलनेस, उसके अंदर आप प्रेजेंट के ऊपर फोकस करवाने के लिए उसको कर सकते हैं। जो बच्चे रनिंग करते हैं, मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, घर के अंदर केयरिंग एनवायरनमेंट है, वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। बच्चों को प्यार से, मोहब्बत से समझाएं, उन्हें ये ना कहें कि प्रेजेंटेशन के अंदर उनको ये स्टैंडर्ड अचीव करना है। पहले उनको बस कहें कि आए और बोलें, जैसे बोल सकते हैं, पेपर रीडिंग करें, नोट्स रीडिंग करें, और इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअल आप उसको आगे लेके जाएं। All right, thank you, sir. Sir, there is an question by me. Is some students are introvert. हम उन्हें अगर किसी चीज के लिए इनकरेज करते भी हैं तो वो आगे नहीं आना चाहते और स्टेज की तरफ नहीं जाना चाहते। सर, उनका ये फेयर हम कैसे दूर कर सकते हैं जो दूसरों से बात नहीं करते? बिल्कुल देखिए, इंट्रोवर्ट जो है टाइप ऑफ पर्सनैलिटी है, ये बच्चे अपने अंदर रहते हैं। अगर आप हार्वर्ड गार्डनर और उसकी किताब फ्रेम्स ऑफ माइंड को गो थ्रू करें तो आपको पता चलेगा कि 20 साल की रिसर्च के बाद उसने ये बताया था देयर आर 9 इंटेलिजेंसेस। बाद बच्चे इंट्रोवर्ट होते हैं, बाद एक्सट्रोवर्ट होते हैं। तो अगर आप इंट्रोवर्ट बच्चे को मार्केटिंग में लगा देंगे वो कामयाब नहीं होगा। एक्सट्रोवर्ट को कंप्यूटर टाइपिंग पे लगा देंगे तो उसकी परफॉर्मेंस रिड्यूस हो जाएगी। अब इस बच्चे को इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट पे लेके आना है। आपने उसकी थिंकिंग के ऊपर काम करना है, आपने उसकी पर्सनैलिटी पे काम करना है, आपने उसके फैक्टर्स के ऊपर काम करना है कि व्हाई he lives in isolation, why he does not feel comfortable coming to the class। उसकी काउंसलिंग करनी होगी, उसकी थिंकिंग को बेहतर करना होगा, उसको छोटे छोटे ग्रुप्स के अंदर लीडर के तौर पे एक्टिविटी करवानी होगी, उसको क्लास लीडर बनाना होगा, उसको कॉन्फिडेंस देना होगा, उसको अप्रिशिएट करना होगा, एप्लॉज देनी होगी, उसकी छोटी छोटी बात की तारीफ करनी होगी, उसको रिवार्ड करना होगा, उसके लोकस ऑफ कंट्रोल पे काम करना होगा। और ये एक रात में नहीं होगा, एक हफ्ते में नहीं होगा, इसे कहते हैं लाइफ टाइम लर्निंग। अगर बच्चे के अंदर डिजायर है तो वो चेंज कर लेगा। अगर कोई डेड हॉर्स है और आमादा भी नहीं है, विलिंगनेस नहीं है, तो आप जितनी मर्जी ऑक्सीजन दे दें वो नहीं आएगा। एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लेकिन पूरी मेहनत करने के बाद। Thank you, sir. Anyone else want to ask something? Please take this feedback of the session and do share with me.
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मुझे ये पूछना, हम बड़ी तैयारी कुछ अच्छा करके जाते हैं, लेकिन एक खौफ ज़हन से नहीं जाता कि गलती ना हो जाए किसी भी क्लास में, किसी भी जगह पे। तो ये खौफ को कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे हम इसको खत्म कर सकते हैं? खौफ डेथ है आपकी, खौफ मार डालता है आपको। खौफ के काबू पाना होगा, इसको किक आउट करना होगा। जिस चीज का खौफ है वो करना होगा, बार बार करना होगा, रिपीट करना होगा। अगर आपको मजीद कॉन्फिडेंस चाहिए, ईट दैट फ्रॉग, इस किताब को पढ़ें। मेरे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करें, मैं आपको सॉफ्ट कॉपी भेजूंगा। जो कामयाब तरीन लोग हैं उनका सबसे पहला काम ये होता है, वो काम करते हैं जिससे उनको डर लगता है। खौफ का एक ही तरीका है, उसको फेस करना। उसको भागेंगे वो मजबूत होगा, जड़ें पकड़ेगा, आपको नीचे गिरा देगा। नाउ यू हैव टू मेक ए चॉइस। उसी खौफ के साथ चलना है या अपने आप को रीस्किल करना है, अपस्किल करना है, उसकी साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग लेनी है, एनएलपी है, माइंडफुलनेस है, न्यूरो असिस्टिव कंडीशनिंग है। मॉडर्न साइकोलॉजी ने बहुत सारे सोल्यूशन दे दिए। अब वो पुराना जमाना नहीं रहा। एक खौफ है, उसी के साए में उम्र गुजार दें, उससे बाहर निकलें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा ये क्वेश्चन था एक कि जो है ना अक्सर स्ट्रेंजर्स में या ज़्यादा पब्लिक जहाँ होती है तो जी वहाँ जी पर काफ़ी थोड़ी हेसिटेशन होती है। तो बहुत कुछ ऐसा मैं बोलना चाहता हूँ या उसकी तैयारी होती है, लेकिन वो पूरा जो मैसेज होता है वो कन्वे नहीं कर पाता हूँ। तो इसको किस तरह से ये एक वीकनेस को इसको हम कर सकते हैं दूर। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि बाज़ बच्चे कुछ ऐसे होते हैं क्लास में, वो एक क्लास के लीडर बने हुए होते हैं और अक्सर वो टीचर के साथ मिसबिहेव करते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं ऐसा कि वो, पहली बात तो कि ऐसा कुछ वाकया पेश ही ना आए मिसबिहेव का, और दूसरा अगर कि ऐसा कुछ होता है तो हम अपना गुस्सा कैसे कंट्रोल करें और फिर उस बच्चे के साथ कैसे डील करें। देखिए मेरे भाई, जो पहली बात है कि जब स्ट्रेंजर से मिलते हैं तो एक फियर होता है, ये नॉर्मल है, ये हर शख्स के साथ होता है। अपनी सोशल स्किल्स के ऊपर काम करें, ठीक है। दूसरे के इंटरेस्ट के मुताबिक बात करें, फोकस अपनी ज़ात से निकाल के दूसरे के ऊपर फोकस करें। और जितना ज़्यादा आप लोगों को मिलेंगे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। पब्लिक स्पीकिंग इवेंट्स उनको ज्वाइन करें, स्पीच क्लब्स होते हैं उनको ज्वाइन करें, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में जाएं, कुछ ऐसी एक्टिविटी स्टार्ट करें जिसमें आपको फ्रंट पे आना पड़े। टेड स्पीचेस देखें, अच्छे अच्छे काम करें, इंटरेक्ट करें लोगों के साथ और फाइंड आउट करें कि आप खौफजदा क्यों हैं, क्या वजह है, दूसरे से आपको क्या डर है। और अगर दूसरा पिस्टल निकाल के आपको फायर नहीं करेगा तो फिर क्या मसला है बात करने में। तो ये कॉन्फिडेंस आपको डेवलप करना पड़ेगा। देखिए, कॉन्फिडेंस इज नॉट एन इंजेक्शन कि मैं आपको इंजेक्ट करूं और आपके अंदर आ जाए। यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपको इंटरेक्टिव होना पड़ेगा। गूगल करें व्हाट इज सोशल माइंडसेट, हाउ यू कैन हैव social mindset, how you can have social skill set, what are the activities in your area, in your school where you can work। अपनी नींद पूरी करें, इससे भी कॉन्फिडेंस आएगा। 5 AM क्लब 15 साल की रिसर्च के ऊपर किताब है, इसको गो थ्रू करें, माइंडफुलनेस करें, आपके अंदर सुकून आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा तो बाहर भी आएगा। अगर अंदर डरे हुए हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, इंटरनल कम्युनिकेशन नेगेटिव है, तो आप आउटर हमेशा डरे रहेंगे, हमेशा खौफ का शिकार रहेंगे। अब बात कर रहे होंगे
लहजा कांप रहा होगा, आईज का फोकस नहीं होगा, तो इस विशियस सर्कल से आप कभी भी निकल नहीं सकते। जो बच्चे हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ मिसबिहेव करते हैं, वो क्यों मिसबिहेव करते हैं? बाय नेचर भी होती है, ठीक है। तो आपको ये भी देखना होगा और आपको उनकी जो बैठने की सीटिंग पोजीशन है उसको चेंज करना होगा। उसके अलावा अगर आप उनको एंगेज करते हैं मीनिंगफुली एक्टिविटीज के अंदर, चीजों के अंदर, टेस्ट के अंदर, स्पीकिंग के ऊपर, तो आप देखेंगे उनको मिसबिहेव करने का कम मौका मिलेगा। लेकिन बात पर्सनैलिटी प्रॉब्लम्स वाले जरूर होते हैं। आप देखेंगे कि उनके मिसबिहेवियर का ताल्लुक कहीं ना कहीं उनकी फैमिली के साथ होगा, उसके पेरेंट्स के साथ होगा, घर में मोहब्बत नहीं मिलती होगी, घर में ट्रस्ट नहीं होगा, पेरेंट्स की लड़ाई होती होगी, और ये सारी चीज़ें बचपन में शख्सियत का हिस्सा बन जाती हैं और वो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस एग्रेशन के जरिए अपनी उस इन्फियरिटी को ताकत बना के पेश कर रहे होते हैं। तो दे आर पेशेंट्स, दे आर मेंटल पेशेंट्स, दे आर पेशेंट्स ऑफ बैड इमोशंस। उनकी इमोशनल काउंसलिंग करने की ज़रूरत है, तो इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। आप ये अप्लाई करें और तमाम टीचर्स जितनी चीज़ें मैंने आज शेयर की हैं अप्लाई करें और मुझे स्मार्ट गेम्स एकेडमी के ज़रिए अपने फीडबैक दें। काम ना करें तो मैं अवेलेबल हूँ, लेकिन खलूस नीयत के साथ, नॉलेज के साथ, समझ के, पढ़ के और सिचुएशन के मुताबिक अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह 80% रिजल्ट आएंगे, 100% तो अल्लाह ताला के हाथ में है। Thank you so much for giving us so much informative session, Ms. Tariq. On the behalf of all participants, I thank you again. It's a really nice experience with you. Thank you, sir. Thank you so very much. Thank you very much. Audience, I would like to inform the participants that another session on now about human personality. Session will take place on Saturday at 3:30 p.m. conducted by Mr. Aisha Tariq. Please stay tuned and mark the date. Allah Hafiz.